हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनक्कम। आप सभी का स्वागत है एक और नए एपिसोड में ऑफ द लेट्स टॉक शो। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और आज हमारे साथ जो गेस्ट पे है वो है उन्नति कश्यप एंड वेरी एस्पायरिंग स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मॉडर्न मीडिया, जिनको मैं पिछले 2 साल से जानता हूं। वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड। सो कैसी चल रही है लाइफ उन्नति? I'm doing good. I am holding up on the field and off the field. So yeah, it's fine. It's good. So I know you've been to a podcast before, but on the other side, you were an interviewer. So tell us, how was your experience? So yeah, it's the first time कि मैं like इस side पे बैठी हूँ and not on the other side. I've always been the one interviewing people and not the one who is being interviewed. So I'm not very used to this and it feels kind of weird to, answer something that someone's questioning and I'm like, कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ? So yeah, I guess that's a default that I wanted to develop बचपन से ही, और अब जब default बन गया है तो थोड़ा shift करने में मुश्किल हो रही है, but yeah, I'm trying. It's good. Experience was very nice. So आप अभी second year में, right? आपके college में? Yeah. तो how's your experience with journalism and modern media? Honestly, the name, it shined so bright in everyone's eyes. सबके आँखों में it was like, it's such a glamorous degree. The Fancy word, one. yeah, fancy degree. जो सब लोग बोलते हैं कि ये तो एक ग्लैमर की दुनिया में एंटर करने के लिए होता है. तो I did not come with that mindset, but I came with that perception कि शायद इस डिग्री में भी, जैसा लोग बोलते हैं वैसा ही होगा. It is a tad bit different. I won't be afraid to say कि it's completely opposite to what I imagined it to be. Okay. कई बार you feel good, कई बार you feel bad about it. You are like कि ये क्या choose कर लिया, ये क्यों ले लिया? Yeah, so it's been nice. Honestly, the roller coaster that it has taken me to, it has been the best that I've ever seen in life. So, हाँ. Okay. And you were a science student in your higher secondary, right? And you chose journalism. Like, उसके पीछे की बात बताइए, आपने क्यों चूज किया, आप कैसे चूज किया? बचपन से ही ना, I was an inquisitive child and I spoke well, मतलब singing, dancing and everything. That kid who is always going around doing everything that comes in their way. मैं वो बच्ची थी. पर बात ऐसी है ना कि since I come from a very traditionally Bihari family with, a tad bit of Bengali culture and all. So yeah, it becomes very important for you to study. तुम्हें पढ़ना बहुत पड़ता है, तुम्हें बेस्ट बनना पड़ता है. So I was that kid की जो क्लास में फर्स्ट आएगी और सबकी मम्मी देख के बोलेगी वो देखो वो she's a very smart student है ऐसा. So this student mentality ये बचपन से बना दी गई थी घर पे. Now when I grew up, because of this mentality, I'm like, everyone gradually made me believe that I am made to study and nothing else. जबकि मैं, like I said, मैं सारे co-curricular activities करती थी. But everyone just made me believe that it's, you have a technical brain, people say they have a technical brain. So yeah, you work well with numbers, you work well with computers, you work well with science. Everyone just made me believe that. And since Indian households में एक perception होता है about choosing science and choosing arts वाला thing. After my 10th, even though my parents were quite liberal about it, they were like, जो लेना है तुम ले सकते हो, but it was just that they gave me this one, opinion कि science लेने से ना you're on the safer side for the rest of your life. Why? Because पहले it was very that for me कि क्या इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, but अब now that I've done this, it's just like साइंस मेक्स योर माइंड वेरी ओपन. तुम किसी भी थॉट, किसी भी आइडिया को ना अपने पर्सपेक्शन में लेते हो, प्लस तुम दूसरों का पर्सपेक्टिव भी समझते हो. सो या दैट थिंग आई एम ग्रेटफुल फॉर इन साइंस, बट इट वॉज नॉट क्वाइट फिटिंग फॉर मी. मैं आ तो गई 11th 12th में कि मैं साइंस करूँगी, अच्छे से करूँगी, मैं जेई क्रैक करूँगी, IIT मुंबई जाऊँगी एंड आई विल बी द next billionaire, youngest billionaire. But that dream, it shattered in like 1 week of entering into 11th. It's like कहते हैं ना कि 10th के बाद तुम्हें एक दरिया में फेंक दिया गया है जहाँ से तुम्हें खुद से कूद के जाना है, तैर के जाना है. So that thing happened. It quite demotivated me. But I always had interest in literature and all of that. तो read करना was my escape.
पहले आई थॉट आई वॉन्ट टू स्टडी लिटरेचर. आई एक्सप्लोर्ड दैट ऑल्सो. फिर आई वॉज लाइक आर्ट्स लेके करूँगी क्या. ऑब्वियसली पेरेंट्स को बताना है तो तुम्हें अपने आप को बताना पड़ेगा तुम्हें साइंस लेके करना क्या है आगे, क्या करूँगी. पॉल साइंस की डिग्री करने का भी सोचा था एक पॉइंट पे, बिकॉज आई लव पॉलिटिक्स. बट वही बात है, पेरेंट्स को क्या बोला जाए. तो यू नो इट वॉज लाइक कि क्या करना है, यूपीएससी देंगे क्या. पर यूपीएससी वाला दिमाग थोड़ी हो सकता है मेरा, दैट सेल्फ डाउट. सो फाइनली आई जस्ट मेड दिस वन लिस्ट. आई स्टिल रिमेंबर, आई स्टिल हैव दैट लिस्ट. मुझ में क्या टैलेंट है. एंड देयर इज दिस वन लाइन रिटन इन दैट, नथिंग एल्स. सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, आई कैन स्पीक. मैं बोल सकती हूँ. एंड दैट बिकेम एन आइडिया इन माई माइंड कि अगर तू बोल सकती है और तू बचपन से इंक्विजिटिव है तो तू क्या कर सकती है उन दोनों को मिला के. जर्नलिज्म कर सकती है. और पॉलिटिक्स में तो पहले से इंटरेस्ट है तो, एंड जनरल नॉलेज टाइप्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो आई जस्ट थॉट कि जर्नलिज्म मेरे लिए हो सकता है. एंड आई एक्सप्लोर्ड इट ओवर माई 12th स्टैंडर्ड. साइंस छोड़ के मैंने यही किया है. पढ़ाई करते थे ऑब्वियसली, बट ये थोड़ा साइड हॉबी बन गई थी कि बोलना, अपने आप को रिकॉर्ड करना, देखना कि कैमरा पे कौन कैसा लगता है. इवन आई एम स्टिल नॉट कंफर्टेबल विथ द कैमरा फेसिंग मी, बट आई स्टिल ट्राइड इट. मैं 12th से वो चीज़ करती आ रही हूँ. तो दैट्स व्हाट इंटरेस्टेड मी कि अगर मैं बिना थके अपने आप को कैमरा पे परफेक्ट बनाना चाहती हूँ तो साइंस में आपको पढ़ने कहते हैं तुम सुबह 4 बजे उठो, तुम दोपहर को सो मत, ट्यूशन जाओ, ये करो वो करो. तो वो चीज़ अगर मैं करने में थक जाती हूँ, पर मैं सुबह 4 बजे से लेके 12 बजे रात तक अपने आप को कैमरा पे परफेक्ट करवा सकती हूँ. सो दैट इज़ माई पैशन. पैशन इज जस्ट समथिंग दैट यू लव टू डू विदाउट गेटिंग टायर्ड. फॉर मी इट्स लाइक दैट. तो इसलिए हाँ, आई चोज टू स्विच दिस. वेरी वेल सेड. सो आई थिंक फॉर द ऑडियंस मैं बताना चाहूँगा, उन्नति कश्यप ऑलमोस्ट गॉट इन टू DU बट सी रिजेक्टेड द एप्लीकेशन. और क्यों फिर आपने दूसरे कॉलेज में चूज़ किया? ये मतलब आई वोंट से आई रिजेक्टेड इट. इट्स वाज जस्ट, जिसे कहते हैं ना, कुदरत का खेला हो गया मेरे साथ. हाँ, 12th के बाद मुझे और मेरे पेरेंट्स दोनों को लगा कि अब आर्ट्स लेनी है ना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा तुम्हारा कोई लाइफ सेवर नहीं है, स्पेशली जर्नलिज्म. बिकॉज बहुत सारे सरकारी कॉलेजेस में जर्नलिज्म की डिग्री नहीं मिलती है. एंड मिलती भी है तो इट्स लाइक the perception we have of सरकारी कॉलेज, which is not true. कई सरकारी कॉलेजेस में मुझसे बेटर जर्नलिज्म कर रहे हैं लोग. बट वही बात है कि आफ्टर गिविंग लाइक CUET एंड एवरीथिंग, आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मुझे मिल जाएगा. बट दैट वन टैड बिट ऑफ थॉट कम्स इन योर माइंड, बिकॉज तुम्हारे सब्जेक्ट्स वर नॉट द सेम एज योर कॉम्पिटिटर्स. सो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड की लिस्ट्स निकलती हैं, उसमें से 4 राउंड्स निकलते हैं. देयर इज दिस लाइक वन स्पेशल राउंड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. फर्स्ट 2 राउंड्स, लाइक फर्स्ट राउंड आई डिड नॉट गेट एनीथिंग. सेकेंड राउंड आई गॉट अ फिलोसफी का डिग्री कि फिलोसफी टाइप समथिंग, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, बट या दैट. साइकोलॉजी का भी ऑप्शन था, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी इट बिकॉज इट वॉज अगेन, it involved science and at that point I hated science like anything. मुझे chemistry नहीं पढ़नी, मुझे biology नहीं पढ़नी. So that thing, तो DU का third cut off जब आया, I was already enrolled into my current university because my dad thought it's a safer option to not wait for a college to call you up and better कि तुम register तो करके रहो किसी एक university में. But then it was too late कि बहुत लेट हो रहा है. इट वॉज लाइक अगस्त का एंड और समथिंग. एंड माई डैड वॉज लाइक वॉट, जस्ट लेट इट बी, इस वाले कॉलेज में जा, यू शुड डू मास्टर्स किसी अच्छे कॉलेज से और समथिंग. नाउ व्हेन आई केम हियर आई समहाउ जस्ट लॉस्ट माई सिम कार्ड एंड एवरीथिंग. ऐसा सब कुछ हो गया. ओके. एंड बेसिकली फॉर 1 entire week आई वॉज कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड. किसी से बात नहीं हो रही, मम्मी पापा से बात नहीं हो रही, दीदी से बात नहीं हो रही, किसी से भी, दोस्तों से बात नहीं हो रही. आई जस्ट हैड लाइक वन रूममेट जिससे मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल करती थी दिन का 5 मिनट मम्मी को. दैट्स इट. एंड माई मॉम इज़ नॉट वेरी टेक्निकली savvy, so she can't open my Delhi University का page and see if I got in. And I still remember it was, I guess, 26th of August or something. And 26th, no, sorry, I guess it was 30th of August. And 30th of August को I got my SIM card, नया SIM card, and I put it in my phone. And one thing I checked कि notification आते हैं मेल्स में, तो मुझे मेल आया था from ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट एंड ऑल होता है. सो
there I got a mail and I clicked on the link and I saw that my name was on the cutoff list for Delhi School of Journalism. Okay, that was my dream. Honestly, that was my dream. But वही बात है, the date passed out. DU में you have like एक week का time to pay the fees and everything. निकल गया वो time. So that was why I did not go to Delhi University. बाकी मेरा सपना था Delhi University जाना. So yeah. बैक ऑफ द माइंड अभी भी चलता है वो? काफ़ी बार फर्स्ट ईयर में द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव थॉट कि मैं छोड़ देती हूँ इस कॉलेज को, एक और साल चलेगा, ड्रॉप लगेगा कोई बात नहीं, लोग कहेंगे आर्ट्स के लिए ड्रॉप लिया, हाँ लिया कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट एक बेटर कॉलेज में जाके करूँगी, मेरा सपना पूरा होगा. नॉट दैट आई एम सेइंग माई करंट यूनिवर्सिटी वॉज नॉट अप टू द पार उस टाइम पे, बट इट वॉज जस्ट दैट तुम्हें वो सेटिस्फैक्शन तभी मिलती है जब तुम्हें अपना मन चाहा चीज़ मिल जाता है. वो मुझे नहीं मिली थी. सो आई थॉट, अभी तक मैं सोचती हूँ, अभी तक आई एम लाइक लेट्स अप्लाई हियर, लेट्स अप्लाई देयर, देर आर कोटाज फॉर स्टूडेंट हु रियली वांट टू शिफ्ट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर. I really tried to do that, but I just feel like it will be too big of a change for me right now, and I'm trying अलग चीज़ें अभी already. तो 10 चीज़ें try करने से better है be stable and try everything one by one. So yeah. You mentioned perception a lot of time. Yeah. Abhi. So what is your perception of the current situation of Indian journalism? See, perception, the word itself is a key integral part of journalism that we are taught, okay? Because journalism is not just about straight up black and white. Journalism black or white hota hai, I get it, but there's this thin line of a gray shade that gives you the power of creativity. Creative writing हो गई, editing हो गई, ये बोलना एक creativity हो गई तुम्हारी. So I just feel like कि at this point journalism is all about that one grey line. For me, मुझे एक क्रिएटिव जर्नलिस्ट बनना है. बट अगर हम बात करें एज अ इंडियन जर्नलिज्म का डायस्पोरा जो अभी चल रहा है, इट इज़ नॉट गोइंग वेल फॉर मी. ऑफ कोर्स इट्स नॉट. I have my own political opinions, I have my own thoughts about things, and according to those, the media is not doing well. The media has done us like very dirty. We keep on saying fourth pillar of democracy. नहीं है वो fourth pillar. वो बस अब एक टूटी हुई बेड की टांग बन चुकी है for me. I know this will be very offending to some, but yeah, it is what it is. You cannot just keep on, giving all this monotonous headlines all the time about कौन बनेगा करोड़पति टाइप्स, कौन बनेगा CM, कौन बनेगा PM. That's not just what journalism is about. It's about voicing out people. It's about telling you the truth. But आज के ज़माने में journalism is just the exact opposite of that. ना वो लोगों को आवाज़ दे रहे हैं, ना वो लोगों को सच्चाई बता रहे हैं. वो बस कर रहे हैं तो advertisement. जो भी कहो, paid हो, unpaid हो, that's totally their thing. But हाँ, that is what I am perceiving Indian media today. It's just ad. जैसे अभी भी देख रहे हैं हम, जो इन्फ्लुएंसर्स का केस चल रहा है, हर दिन में अगर न्यूज़ चैनल खोलूँ तो वहाँ पे आता है कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ये है, वो है. दूसरी न्यूज़ दिखाते ही नहीं है वो. Exactly. जो इम्पोर्टेंट चल रहा है, अभी रिसेंटली एक गैंगरेप हुआ, कोई कवर नहीं करेगा उसे. Exactly. क्यों हो रहा है ये जर्नलिज्म में? आई कांट अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट, एंड they consider themselves as the celebrities, the journalists, I would say. Exactly. आज like I said पहले कि मुझे बोला गया था बहुत ग्लैमरस कोर्स है. I never understood ग्लैमर किस बात का. I just feel like जितना लोग, I know it might be a degradation of a statement to say कि हम लोग और लोगों की तरह देश की सेवा ही करते हैं, बट we could say we are the servant of people. हम लोगों को हम लोगों को आवाज़ देना चाहते हैं. पर वही बात है कि आप आवाज़ देने के नाम पे यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन शिफ्टिंग ओपिनियंस ऑफ पीपल. क्योंकि कई बार होता है ना कि सेलिब्रिटी अपने आप को लोग क्यों मानते हैं? इट्स बिकॉज दे फील दैट पावर ओवर पीपल, दे फील दैट इन्फ्लुएंस ओवर पीपल. अब जर्नलिस्ट का इन्फ्लुएंस पीपल पे नहीं होना चाहिए, सिस्टम पे होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी. लाइक हाँ ठीक है, कई बार हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं एज सोशल वर्कर्स, बट एक प्रॉपर जर्नलिस्ट वुड बी समवन हु वुड बी अ पाथ टूवर्ड्स
towards the system, to get to the core of the system. कई चीज़ें हो रही है, like you said, rape case, murder cases हो रहे हैं, and in the system itself there are so many loopholes that people just do not know. There's so many things going on that are so wrong on like so many different levels, पर हम उसको call out नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि at the end of the day कितना भी मीडिया डिजिटलाइज हो जाए, कितना भी मीडिया स्मार्ट हो जाए, इट कैन नेवर हैव द पावर दैट एक्चुअल जर्नलिस्ट्स हैव, क्योंकि वो टीवी पे हैं, वो एक स्क्रीन पे हैं. स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन भी हो सकती है, बट वही बात है, अगर आप एक पॉइंट पे अच्छा काम करके फेमस हो जाते हो ना, उसके बाद आपका पावर लोगों पे होता है. तो बट आई फील लाइक वो सेलिब्रिटी स्टेटस अपने आप को देना इज जस्ट टू मच. And actually, you know, having that celebrity lifestyle is fine, but behaving like that is just, according to me, just too arrogant of them, honestly. Recently मैंने जो नोटिस किया है, प्रिंट मीडिया को लोग बहुत डिग्रेड करते हैं, बट आई स्टिल प्रेफर प्रिंट मीडिया ओवर द टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स, बिकॉज प्रिंट मीडिया में हमको वो जो समझाना चाह रहे हैं हमको बहुत आसानी से वो पहुंचा सकते हैं, पर टीवी मीडिया में वो हमेशा से अपना एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं, एक हमको एक डायरेक्शन में भेजना चाहता है कि तुम अगर सोच रहे हो तो वही सोचो, तुम और कुछ नहीं सोच सकते. तो यस, प्रिंट मीडिया को अगर एनकरेज करा जाए इंडिया में तो कैसे हो सकता है आपके ख्याल से? सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फ्लुएंस, लाइक यू सेड, जो टीवी वाला मीडिया हम पे जो इन्फ्लुएंस करता है, आई फील लाइक दैट इज मोर ऑफ अ यू नो साइंटिफिक, दैट हैज़ अ साइंटिफिक एडवांटेज टू इटसेल्फ, क्योंकि ये तो स्टडी किया गया है साइंस में कि ग्राफिक्स एंड मूविंग इमेजेस दे जस्ट कैप्चर योर ब्रेन, एंड यू नो पढ़ने से या लिखने से 80% 90% ज़्यादा वो तुम्हारे दिमाग पे अफेक्ट करता है. सो आई फील लाइक द ग्राफिक्स पार्ट इज़ द मोस्ट अपीलिंग पार्ट अबाउट ब्रॉडकास्ट मीडिया जो टीवी पे आता है. प्रिंट जर्नलिज्म अब थोड़ा डिग्रेड हो रहा है बिकॉज अब हमारे हाथ में मोबाइल्स हैं, अब उसका भी एक अलग वो यू नो फ़ायदा है, इट्स पोर्टेबल, इट्स मोबाइल एंड एवरीथिंग. बट द थिंग इज़ कि यू नो एट दिस पॉइंट वन थिंग दैट इज़ कीपिंग प्रिंट मीडिया अलाइव इज़ देयर रिलायबिलिटी. हम उन पे रिलाई कर सकते हैं क्योंकि कुछ एक चीज़ जो प्रिंट हो गई ना, वो प्रिंट हो गई है, यू कैन नॉट इरेज इट. हाँ ठीक है, इंटरनेट फुटप्रिंट करके भी एक चीज़ होती है, बट दैट इज़ समथिंग जो हम आज से 50 साल बाद जिस पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि आज जो पब्लिश हो रहा है उसका फुटप्रिंट हम बाद में चेक करेंगे, पर आज हम जिसका फुटप्रिंट चेक करेंगे वो आज से 50 साल पहले हो चुका है. तो वो रिलायबिलिटी एक इट्स ऑल्सो यू नो एक प्रेशर काइंड ऑफ फैक्टर लेके आता है ओवर द प्रेस मीडिया, सो दैट दे डोंट क्रिएट दिस extra nominal perception about things. That's what is keeping print media alive at this point, reliability unki. And even the digitalization of journalism. Exactly, it is. अब वही बात है कि आज I don't feel like print media will ever die. क्योंकि people see India is a country that has a population of 1.4 billion, 140 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोग अगर मिलके एक साथ तो प्रिंट मीडिया क्विट नहीं कर सकते ना. आज के ज़माने में देयर इज़ मोर देन 100 यू नो एक लाख या 1.5 लाख से ज़्यादा प्रिंट मीडिया हाउसेस हैं, तो वो ऐसे ही अलाइव नहीं रह रहे हैं. इट इज़ बिकॉज पीपल रीड देम. इट इज़ बिकॉज हमारे दादा दादी, हमारे पापा मम्मी, UPSC एस्पिरेंट्स, पीपल हु प्रेफर रीडिंग, वो लोग की वजह से इट्स अलाइव. तो आई फील लाइक आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद प्रिंट मीडिया विल नॉट डिमिश. And me myself, I'm very interested in print media and there's a lot of people जो प्रेस में काम करना चाहते हैं, तो वो लोग हैं जो उसको अलाइव रखेंगे for the coming years. Yeah. So I hope you're moving towards the field of journalism कुछ सालों में. तो what do you expect from journalism? A lot of hardships. Honestly, people have just told me straight up to my face कि do not expect people to, you know, your life to be very strawberries and chocolates after you enter the field. It's very bad on, you know, that side. क्योंकि हम, you know, वही बात होती है कि हम देखते हैं कि ऐसे टीवी पे आ रहे हैं, अच्छी बात है, they are doing something that they love, but वो love को कॉन्कर करने के लिए ना उन्हें बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है. कई बार मेरी फैकल्टीज़ ने, मुझे अपने टीचर्स ने खुद बताया है क्या क्या उन्हें झेलना पड़ता है,
क्या क्या देखना पड़ता है. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई एक्सपेक्ट कि वो तो आएगा ही मेरे पास. बट वन थिंग दैट आई एक्सपेक्ट, जो कि मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोला था ये चीज़, कि अगर मैं कोई भी एक और फील्ड लेती, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैड टेकन अप इंजीनियरिंग सिंस आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, मैं वहाँ पे ट्राई करती कि मैं अच्छा करूँ, मैं वहाँ ट्राई करती कि मैं सर्वाइव कर लूँ उस फील्ड को. बट इन दिस फील्ड आई कैन मेक श्योर दैट आई एम द बेस्ट, आई कैन वर्क टूवर्ड्स इट, क्योंकि अब मैं थकूंगी नहीं वो करते करते. तो दैट इज़ वॉट आई एक्सपेक्ट दिस इंडस्ट्री टू गिव टू मी व्हेन आई गो. वो मुझे एक फ्रीडम दे ताकि मैं खुद को एक्सप्रेस और खुद को बेटर कर पाऊँ. दैट एज अ स्टूडेंट आई एम इमेजिनिंग. बाकी एज अ प्रोफेशनल आई नो पीपल इमेजिन वेरी डिफरेंट. So yeah, I am expecting that. I can sense passion in your speaking, passion towards the field. Okay, so क्या कुछ इंस्पायर किया था आपको जर्नलिज्म लेने के लिए? कुछ ऐसा सर्टेन पॉइंट जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, अब मैं करने ही वाली हूँ ये चीज़? Yeah, there's this journalist that's her name is Palki Sharma Upadhyay. She has बचपन में I thought she was pretty, इसलिए I used to watch her on TV. She is very pretty. But उनको मैं TV पे देखती थी because I thought she is pretty and I like the way she speaks. There's a certain tone of her. हम लोग क्या flat voice में बोलते हैं. She speaks like this. She has a entire sine graph going on, entire sine wave going on. वो बोलती है वो रुकती है, वो बोलती है वो रुकती है. I love the modulation she does. And I also love the wit and the presence of mind she has. So she was one of the reasons why I thought कि ये करना है जीवन में, ये करना है कि मुझे ऐसा बनना है. बहुत सारी चीज़ें उनका एक्सपीरियंस पढ़ा है मैंने, उनके बारे में पढ़ा है. मिली नहीं हूँ आज तक, मिलने का सपना है, बट उनसे इंस्पायर होके ही आई वाज लाइक कि यही करना है मुझे. या पालकी शर्मा की बात हो रही थी तो मैंने अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू देखा था विद मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट. तो दैट होल सेटअप वाज लाइक ब्यूटीफुली मॉड्यूलेटेड. ओके, और आपने कहा कि आप मिली नहीं हो उनसे कभी, बट यू हैव मेट चित्रा त्रिपाठी, सुशांत सिन्हा. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट इज सम कॉमन ट्रेट्स यू हैव नोटिस्ड? पहली चीज़ तो दे आर ऑल वेरी पॉइज्ड, वेरी I would not say low key or down to earth because not everyone's like that, but I would say they are very composed. They never lose their composure anywhere. मैं उनसे मिली हूँ एक पब्लिक इवेंट में, नॉट अ पब्लिक इवेंट आई वुड से, बट फैकल्टी इवेंट में. आई हैव सीन देम सिटिंग लाइक दिस स्ट्रेट अप. चित्रा त्रिपाठी, आई हैव सीन हर सिटिंग लाइक दिस, एंड सुशांत सिन्हा जस्ट स्टेड थोड़ा सा क्वाइट. Like we see him on TV, he just speaks and people have to listen because he makes you listen. But in reality, when you see them, it's not that big of an aura that you sense. I thought कि वो आएंगे और मेरी आंखें चमक जाएंगी कि oh my god, wow, I'm meeting my idol. But ऐसा नहीं हुआ क्योंकि he was very humane, सुशांत सिन्हा. And when चित्रा त्रिपाठी came, I just वो चमक जो मुझे सुशांत सिन्हा में एक्सपेक्ट हुई थी वो मुझे चित्रा त्रिपाठी में आई, क्योंकि I could sense her aura. And I feel like to women in journalism, that's what years of journalism being on TV does to you. You just have that composure to yourself and you have that aura because camera makes you, very uncomfortable and comfortable at the same time. Uncomfortable क्योंकि एक फैक्टर होता है कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो कैमरा में, आप बोल नहीं ढंग से रहे हो, ये कैसे बात कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, हाथों का एक्शन सही नहीं है, ये नहीं है, वो सही. एंड इन आवर फील्ड एक एक चीज़ मैटर करती है. कलर ऑफ माई नेल्स, कलर ऑफ माई हेयर बैंड, कलर ऑफ माई इयर रिंग्स, मेरा मेकअप, एवरीथिंग इज़ वेरी एक माइन्यूट चीज़. इट मेक्स अप टू अ वन प्रोडक्शन फुल प्रोड्यूस्ड शो. वो चीज़ ना, इट इज़ सच अ लॉन्ग प्रोसेस कि उस पूरे प्रोसेस में ना आप ढीठ बन जाते हो कि आपको फील ही नहीं होता उसके बाद कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ. जो जस्ट लाइक हाँ कर रही हूँ, करना है. तो वो एक मैंने ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया ऑन TV, बट एज एन असाइनमेंट मैंने फील किया है, देखा है कि एक प्रोसेस जो होता है पूरा प्रोडक्शन का, उसके दौरान आप इतना थक जाते हो ना कई पॉइंट्स पे कि आप परफेक्ट लगने का देखते ही नहीं हो, बट आप खुद ब खुद आई डोंट नो इफ इट्स दैट पैशन दैट डज टू यू, बट आप कैमरा में परफेक्ट दिखने लग जाते हो खुद से. सो दैट इज़ वॉट आई फील लाइक शी वॉज लाइक चित्रा त्रिपाठी. She is in real life now, she looks perfect, she has this perfect aura, a perfect way of speaking. So yeah, I really admired the way she presented herself
not very arrogant, not very rude, yet very respectable, you know, very demure, very mindful types. So, yeah. सो मूविंग टूवर्ड्स अ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने अभी कहा कि आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं जर्नलिज्म से, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इम्पैक्ट क्या डालेंगी आप अगर आप फील्ड में जा रही हैं तो? दैट इज समथिंग जो मेरे सपने में है, काइंड ऑफ, यू नो, कि वो एक बैक ऑफ माई माइंड है कि आई वॉन्ट टू बी वेरी फियर्स. ऑनेस्टली मुझे एक फियर्स जर्नलिस्ट बनना है. मुझे नहीं बनना कि यू नो समवन जस्ट टोल्ड मी कि ये करो तो मैं वो करूँगी. मुझे कुदरत का हाल नहीं बताना. मुझे फील्ड पे जाना है. मुझे यू नो लोगों से बात करनी है. मुझे एक्चुअल चीज़ों को दुनिया को दिखाना है. दैट्स व्हाट आई वांट टू बी. आई नो दिस इज़ वेरी अनरियलिस्टिक एंड जिन लोगों ने एक्चुअली किया होगा वो चीज़ दे वुड बी लाइक कि सीख, हाँ क्या बोल रही है, यही सबको लगता है फील्ड में आने से पहले. आई नो मे बी हो सकता है आज से 2-4 साल बाद, 5 साल बाद, व्हेन आई एम ऑन द फील्ड आई एम नॉट व्हाट आई एम टेलिंग कि मुझे जो बनना है. बट दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्ट टू बी, कि यू नो आई वॉन्ट टू बी वेरी फियर्स. आई डोंट वॉन्ट टू फियर एनी वन. आई डोंट वॉन्ट टू होल्ड माई सेल्फ बैक. आई जस्ट वॉन्ट टू डू वट आई हैव परसीव्ड अ जर्नलिस्ट शुड डू ऑलवेज. तो मुझे वो बनना है. या इट्स वेरी विजिबल दैट आपने एक ब्लूप्रिंट बना रखा है आपके खुद के लिए. सो क्या आप उसके पीछे की प्रोसेस बताना चाहेंगे कि कैसे आप विजिबिलिटी कैसी होती है आपकी ब्लूप्रिंट की, आप कैसे करना चाह रही है चीज़ें? सी विजिबिलिटी कम्स ओनली आफ्टर यू एक्सपीरियंस थिंग्स. 10 जगह ठोकरें खाओगे ना तो अपने आप सीख जाओगे चीज़ों को. आई एम एडमिटिंग मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना कि मैं बोल रही हूँ, शायद जितना द फील्ड डिमांड्स. या बट आई फील लाइक कि यू नो जब आप एक जगह काम करते हो, जब आप एक जगह कुछ करते हो, लाइक आई वॉज प्रीवियसली वर्किंग समवेयर एज एन इंटर्न एंड आई वॉज डूइंग दिस विथ साइंटिस्ट्स. एंड साइंटिस्ट्स आर पीपल हु डू नॉट स्पीक. दे डोंट रियली स्पीक. उनको बुलवाना पड़ता है, सर ये बताइए, सर ये करिए. यू नो उनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं कि आपने यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा, आपको ये कैसा लग रहा है, आपको वो कैसा लग रहा है. क्योंकि उनके अब बात यह ना कि आप कुछ भी कंटेंट बना रहे हो अगर, तो इट्स लाइक आपको लोगों को एंगेज भी करना पड़ेगा. और सिर्फ उनकी रिसर्च के बारे में बात करके आप शायद लोगों को एंगेज नहीं कर पाओ जितना आप थोड़ा मिक्सचर ऑफ कंटेंट के साथ कर सकते हो. तो वो चीज़ यू नो एक चैलेंज आता है आपकी फेस पे कि यू नो अब ये बात नहीं कर रहे हैं सामने, इनको मैं बात कैसे करवाऊँ. हाउ शुड आई मेक देम स्पीक, हाउ शुड आई मेक देम लुक इंटरेस्टेड. बिकॉज इतने साल काम करके, इतने साल रिसर्च करके, नो ऑफेंस बट उनके फेसेस काफ़ी बोर्ड लगते हैं ऑन कैमरा. तो इट्स योर जॉब टू मेक देम लुक प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा. आपको एक एक चीज़ बतानी पड़ती है उन लोग को. आई हैड टू टेल देम व्हाट टू वेयर, व्हाट कलर शर्ट, व्हाट कलर पैंट, कौन सा कलर का बेल्ट, कौन से कलर का शूज़, येस सॉक्स भी किस कलर का पहनना है आपको. दिस वॉज अ पार्ट ऑफ माई जॉब देयर. मेरी जो डायरेक्टर थी उन्होंने शी वॉज कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी, उन्नति यू हैव टू डू दिस. ये तुम्हारा काम है, बिकॉज तुम एक कन्वेंशनल पॉडकास्ट नहीं कर रही हो, तुम एक साइंटिफिक पॉडकास्ट कर रही हो जो कि जिसका टारगेट ऑडियंस यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और यूनिवर्सिटी के बच्चे वो चीज़ नहीं देखते हैं. तो तुम्हें बनाना है उस चीज़ को रिलेटेबल समहाउ. तो वही बात है, आप फील्ड पे जाते हो, आपके पास ऐसे चैलेंजेस आते हैं, आप नेविगेट करते हो, तब जाके आपको लगता है कि ओके ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती. दिस इज़ वेयर आई ड्रॉ द लाइन कि यू नो अब अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे कहीं पे इंटर्नशिप करना है, काम करना है, ऑफर्स आते रहते हैं, कई ऑफर्स आते रहते हैं आपको, बट आपका एक प्रेफरेंस बन जाता है. आफ्टर डूइंग दैट इंटर्नशिप, दैट जॉब, आई वॉज लाइक okay, now I want to take a break from interviewing and I want to write, or I want to do something more, you know, casual, social media management हो गया या फिर something like event management. So वो चीज़ होती है कि आप एक जगह एक्सपीरियंस करते हो ना, तो आपको दिमाग में आ जाता है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे अब ये ही करना है. तो दैट इज़ व्हाट आई से. ब्लूप्रिंट इज़ ऑल अबाउट रेक्टिफाइंग व्हाट यू डोंट वांट सो दैट यू फाइनली हैव व्हाट यू वांट. सी उसमें क्या होता है ना कि आप फाइनली बता सकते हो कि मैंने ये कर लिया है, तो अब मुझे ये तो नहीं ही करना है. अब इस जॉब का ये पार्ट मुझे पसंद आया, तो आई विल ट्यून माई सेल्फ इन टू समथिंग कि यू नो मैं ये भी कर सकूँ अपने अगले इंटर्नशिप में या फिर अगले एक्सपीरियंस में. तो या दैट्स हाउ यू फॉर्म अ ब्लू प्रिंट. विजिबिलिटी तभी आती है जब तुम एक्सपीरियंस करते हो, जब तुम्हें 10 लोग गाली देते हैं सामने. दैट्स इट. या दैट्स हाउ यू सी योर सेल्फ इन
5 years वाला परसेप्शन तुम बना सकते हो अपने बारे में. सो आई एम अवेयर दैट जब आप इंटर्नशिप कर रहे थे ये वाली, तो मुझे पता था आपके साथ और कौन कौन काम कर रहा है. तो दे वर ऑल ब्राइट माइंड्स. ओके, सो उनसे आपने क्या सीखा? See, there was an entire production team there. And my director herself, she was so experienced. She was so, she was just so straightforward about her ideas. मैं पहले जब गई थी, it was my first internship last year, around this time only. मैं बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट थी और मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे कह के कि आई एम गोना बी अ कंटेंट राइटर एंड नॉट अ पॉडकास्ट होस्ट. बट देयर आई सॉ माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा समहाउ एंड आई वाज लाइक, I was so under confident about being on the camera. मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या करूँगी. The first interview I did, I was wearing a jeans and a semi-formal shirt. That's not how you dress up in front of scientists and distinguished, scholars. You don't do that in front of them. So वो चीज़ सीखने मुझे उनसे मिली. So वो my director, she made me, turn into a woman and not a girl. कि मैं पहले ऐसा बिहेव करती थी कि हाँ कैजुअल है, हो जाएगा करके. शी वाज लाइक, नहीं होता उन्नति, यू हैव टू बी पिच परफेक्ट. तुम्हारा ड्रेसअप परफेक्ट होना चाहिए, तुम्हारा मेकअप परफेक्ट होना चाहिए, तुम्हारा नेल का कलर क्या है तुम्हें वो भी देखना है. एंड यू हैव टू डू दैट द सेम फॉर द सामने वाला पर्सन, लाइक आई सेड. तो वो चीज़ प्रोडक्शन टीम में कैमरा वाले आते हैं, लाइक वी वर शूटिंग दिस पॉडकास्ट एंड आई कुड रिमेंबर पहले कि ओ ये बंदा ऐसे करता था, ये बंदा वैसे करता था. उनसे वो सीखने मिला कि कई बार इस एंगल से आदमी बेटर दिखता है, उस एंगल से नहीं. देयर वी यूज दोज लाइट्स, लंबी सी लाइट्स होती हैं जिनको आप ऐसे अपने सिर पे लगाते हो सामने वाले के, एंड इट गिव्स यू, इट्स अ कलर थियोरी थिंग, कि आप रेड और पर्पल मिक्स करोगे तो ब्लूइश काइंड ऑफ लाइट आएगा सामने वाले के मुंह पे. अगर आप येलो और रेड कर रहे हो तो एक पिंकिश काइंड ऑफ व्यू आएगा या फिर ऑरेंजिश काइंड ऑफ व्यू आएगा सामने वाले पे. तो दैट्स व्हाट यू लर्न, दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट कि कलर थ्योरी ऑल्सो हैव टू लर्न. अगर मुझे प्रोडक्शन, मुझे सब सीखना है क्योंकि आई वॉन्ट टू लर्न एवरीथिंग. तो वो चीज़ सीखी मैंने वहाँ से. एडिटिंग, वो बंदा एक जो एडिटिंग वाला था, वो घंटों बैठ के फॉर वीक्स एंड वीक्स यूज्ड टू एडिट दिस वीडियो आउट, एंड लास्ट में एक माइनर सी मिस्टेक के लिए दे यूज्ड टू बी लाइक वापस से करो. एंड आई यूज्ड टू बी लाइक, ओ सच अ हेफ्टी प्रोसेस, कि मतलब तुम किस तरह से पूरा वीडियो एडिट कर रहे हो और तुम्हारी एक माइन्यूट से मिस्टेक, उसने उन्नति कश्यप के बदले उन्नति कश्या लिख दिया था. आई गेस पी नहीं लिखा था उसने, उसको पूरा वापस से एडिट करना पड़ा उस चीज़ की वजह से. दैट्स व्हाट आई लर्न कि कई बार तुम्हें लोग रिजेक्ट कर ही देंगे, रिजेक्शंस आते ही रहेंगे, बट करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें उस चीज़ में परफेक्ट बनना है, क्योंकि उस पॉइंट पे पहुंचना है ताकि तुम कश्यप के आगे पी लगाना याद रखो. तुम इम्प्रोवाइज भी कर पाओ कि किसी के सरनेम कश्या नहीं होती, कश्यप होती है. तो वो चीज़ सीखी. अ लॉट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, किस तरह से लोग एंगेज करेंगे, किस तरह से वो करेंगे कि हम ऐसे टॉपिक पे बात करें जो लोगों को अपील करे, या फिर हम किस एक्सपर्ट को बुलाए जो उस पर बात करे और लोगों को पसंद आए वो. सो या, दीज वर द थिंग्स आई लर्नड.